All right, hi everyone. Good evening. Hi Harsh. Good evening Romil. Good evening Prithviraj. Hi प्रथमेश. आज तो लगता है आधे ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं. इसके पहले मैथ के क्लास में कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया था टेंटेटिवली? 55 अराउंड. हाँ, आई डोंट नो अभी अराउंड सब जगह पावर कट ही है कि आ गया है. धीरे धीरे रिस्टोर तो हो रहा है सब जगह. इनफैक्ट मेरा तो जियो फाई चल ही नहीं रहा है. आई एम करंटली यूजिंग हॉटस्पॉट. सो देयर इज एक्चुअली अ मेजर टाइम नेट का प्रॉब्लम भी. वही I'll also keep today's class simple, like basics ही cover करूँगा मैं, and will not jump a lot. In the meantime आप लोगों को कुछ homework दिया था क्या मैंने last class में? दिया तो होगा of course, but उस homework को आप लोगों ने करा? क्या homework दिया था? NCERT, get equipped to mains, window to mains, window to advance. अच्छा, get equipped to advance actually में आप लोग अटके होंगे. बाकी sections तो हो ही गए होंगे. चलो गुड. हाँ, गेट इक्विप टू एडवांस्ड में ही डाउनलोड डाउट्स कुछ रहे होंगे. इनफैक्ट इफ यू वांट तो मैं यहाँ पर गेट इक्विप्ड के सॉल्यूशंस पेस्ट कर देता हूँ. कहाँ पर होंगे वो? नोट्स में रहेंगे, लास्ट में जाके होंगे. ये था कितना था गैशियस स्टेट का? आई थिंक पार्ट 4 रहा होगा. लेट मी सी. ये गेट इक्विप टू एडवांस के ही है. ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था ना? These solutions of the get equipped to advance वाले. ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ ये वाले. ठीक है, I'll share these on the group so that you have the solutions. कहाँ गया support group? All right. एक बार इसको रेफर करना एंड इसमें से मोस्टली आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाने चाहिए. ठीक है, नहीं होंगे तो डेफिनेटली विल डिस्कस. All right. इसके अलावा गेट इक्विप टू एडवांस के अलावा और कौन से सेक्शन में से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे? लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट चेक एज वेल. एम्प्टी वेसल वाले कौन से क्वेश्चंस हैं?
नहीं, ऑफ कोर्स अभी पढ़ाई करेंगे हम लोग. लाइक ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड अप. ठीक है. So, all right. As a quick recap of what we did in the last class, let me just quickly go through. हम लोगों ने यूडियोमेट्री वाला पार्ट देखा था, and then in the end we spoke about KTG and specifically the assumptions of KTG. ठीक है. एंड आई होप आप लोगों को टाइम मिला होगा तो आप लोगों ने ये आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन देखा होगा यूजिंग KTG. It's a long derivation to be done, like if explained in class. ऐसे it's a 10-15 minutes job only, but to explain it and understand it, आप लोगों ने hopefully ये वीडियो देखा होगा, so you would have understood how kinetic theory of gases, how this mathematical model has been used to understand the behavior of gases. ठीक है. Now, आज की क्लास में we will continue with our discussion of KTG, and I will talk about some important results that you need to remember from KTG. ठीक है. So एक एक करके observe करेंगे. ठीक है. Just give me a moment. I will quickly come back. Give me 1 minute. All right. So let me put the heading. Results of KTG. ठीक है. Kinetic theory of gases. इसमें of course सबसे पहला रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा. That was related to the derivation of ideal gas law, right? And उसी में along with that derivation itself, you would have studied one more result, which is related to the average kinetic energy of molecules, right? So PV is equal to nRT, right? एक ये important relationship आपने सीखा होगा. Right? Along with this, second important relationship जो आप लोगों ने देखा होगा, average kinetic energy. ठीक है. ऑल्दो इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी देखेंगे, बट यहाँ पर while doing that derivation आप लोगों ने देखा होगा average kinetic energy of ideal gas, right? And when we talk about this kinetic energy, this is associated with translational motion only. ठीक है. This is something maybe शायद उस derivation में मैंने highlight नहीं करा होगा, but आगे जब आप thermodynamics में जाओगे
तो you will talk about kinetic energy due to motion, and that motion can be translational, rotational and vibrational. ठीक है, तो अभी के लिए, ठीक है, कीपिंग थिंग्स सिंपल, ट्रांसलेशनल मोशन का ही डिस्कशन हुआ है एंड उसके साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन हुआ है, एंड दैट रिजल्ट वाज that average kinetic energy of ideal gas, right, is equal to 3 by 2 RT. This is when we talk at a per mole level. ठीक है, then if you want to talk about at a per molecule level, then this is written as 3 by 2 kBT, right, where kb is called as Boltzmann's constant, is R upon Avogadro's number. ठीक है, kb is Boltzmann constant. ठीक है, this is something in fact even more fundamental constant than gas constant. Boltzmann and his derivation is something which is considered to be one of the most important contributions in thermodynamics, right? In fact I should save those memes यार, मैंने कहीं तो वो मीम देखा था, like in which there were these two famous scientists. So there was this introduction to a book. ठीक है, उस बुक के इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ऐसा लिखा हुआ था, like Boltzmann, who studied statistical thermodynamics, committed suicide towards the end of his findings. Then there was a second scientist, जिसका नाम था, I'm forgetting the name. He also ended his life in the same way. And then the third line of that book was, now it is our turn to study statistical thermodynamics. So that was the one of the best beginning to a book that I had seen. Any which ways, मैं ढूंढता हूँ कहीं पे वो मीम मिलेगा मुझे तो. Coming back, 3 by 2 nRT. ठीक है, that is something which we talk about as average kinetic energy of an ideal gas for n moles of gas. ठीक है, so this is per mole, this is per molecule, and this is if you have n moles of gas, then you report average kinetic energy as 3 by 2 nRT. हाँ, it is true about Boltzmann. मतलब in fact there is this documentary, अगर आप लोगों को भी टाइम मिले, मौका मिले तो देखना, डेंजरस नॉलेज करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री है. नाउ एग्जैक्टली उसके अंदर कौन से साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शंस थे मुझे याद नहीं रहे, बट हाँ उसमें बोल्ट्जमैन के बारे में भी है. मतलब लाइक स्पेशली ऐसे in the context of scientists who somehow lost control. हाँ, it's a good short documentary. जरूर टाइम मिलेगा तब देखना कभी फुर्सत में. Coming back to the results of KTG, there is this one ideal gas equation and this average kinetic energy associated with ideal gas. ठीक है. Now, apart from these results, okay, there is another set of important results which come from KTG,
However, there is some additional, you can say, maths that goes behind in talking about those results. Okay, we kind of cover that under this heading of Maxwell Boltzmann speed distribution of ideal gas. So this is something, जिसके पीछे का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ में पहले डिस्कस कर लेता हूँ. देन आई विल टॉक in more details about the result that we are looking at. So इसमें the idea is that if you wonder, what is the speed of gaseous molecules? Like you have a system, okay, in front of you. You have a vessel, okay, in which there is an ideal gas that is present. Okay, P, V, T, N are constant. Okay, they are not changing. Okay, what we call these are macroscopic parameters. Okay, so the macroscopic state of the gas is stable. Okay, however, individual atoms or particles, they are under constant state of motion. Okay, colliding with each other, randomly moving in random directions, right? Some may be moving at a high speed, some may be moving at a low speed, right? So this Maxwell-Boltzmann distribution, it tries to go into the details, especially trying to understand the speed associated with these gaseous molecules. ठीक है, so यहाँ पर observe करना, ठीक है, based on KTG plus statistics, ठीक है, theory of probability, ठीक है, Maxwell and Boltzmann talked about the speed of gaseous molecules. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, as a quick introduction to it, let me take it from the booklet itself. ठीक है, we'll go and read these line by line, try to understand the background behind this. Okay, so let me kind of make it in bullet points. All right, so the first bullet point talks about that the speed of gaseous molecules changes continuously due to intermolecular collisions, as well as collisions with the walls of container. Okay, the speed of an individual molecule is not constant. Okay. However, यहाँ पे notice करना, observable properties, like जो macroscopic parameters मैंने लिखे हैं, observable properties such as volume, pressure, temperature are constant with time. Thus, it is expected to be applicable to the distribution of molecular speed. Okay, what is this distribution of molecular speed? What it means by it is that हर molecule का अलग अलग speed हो सकता है. ठीक है, some may have low speed, some may have high speed, right? So collectively, as a sample, there is a distribution. ठीक है, and इनके
जो स्टेटिस्टिकल मेजर्स होते हैं लाइक एवरेज, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट विद टाइम. एडिशनली, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, fraction of total molecules having speed between definite ranges, ठीक है, must be constant even though the speed of individual molecules may change as a result of molecular collisions. ठीक है, so what this is trying to tell, ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में हम लोग और ब्रेक करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. हाँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई मैं करूंगा इन पॉइंट्स को. इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा. So these are some of the highlights, which is what this Maxwell and Boltzmann came up with when talking about the speed distribution of individual atoms or molecules inside a sample of ideal gas. क्या क्या उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा. It will be continuously changing because of its collisions. ठीक है. However, when I look at an overall sample, ठीक है, there are certain molecules with low speed, there are certain molecules with high speed. ठीक है, जैसे for example, let's say if I take, speed on the x-axis, ठीक है, you have 0 speed, 10 meter per second, 20 meter per second, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से ये डिफरेंट स्पीड्स हैं. नाउ देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आउट ऑफ द 100% ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स दैट यू हैव, ठीक है, देयर विल बी सम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मे बी 20% हैव स्पीड, ठीक है, रैंडम डेटा ले रहा हूं मैं, 20% हैज स्पीड बिटवीन 0 to 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मे बी 20% has speed between 30 and infinity. ठीक है, and 60% has speed between 10 and 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड. हो सकता है कि एक स्लो स्पीड का मॉलिक्यूल हाई स्पीड का बन जाए आफ्टर कोलिजन. ठीक है, आपने जैसे नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी ऐसे पूल या बिलियर्ड्स के मैच में देखा होगा, लेट्स से एक बॉल स्टेशनरी है और एक बॉल इसके साथ कोलाइड करती है, तो क्या हो जाता है आफ्टर द कोलिजन, इट मे हैपन, ठीक है, कि ये वाली बॉल स्टेशनरी हो गई. ठीक है, ये वाली बॉल जो ओरिजिनली थी मूव करी थी वो स्टेशनरी हो गई, और जिससे कोलाइड हुआ दैट स्टार्टेड मूविंग विद द स्पीड v. ठीक है, बाय लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. तो हो सकता है कि कोई कम स्पीड का मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन ज्यादा स्पीड का हो जाए. ठीक है, या ज्यादा स्पीड का मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन कम स्पीड का हो जाए. ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा विद टाइम. ठीक है, इफ द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स सच एज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, दे आर कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज व्हाट the molecule, this is what this kinetic theory of gases and Maxwell Boltzmann speed distribution talks about.
ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का स्पीड 0 ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वी विल say it can tend to 0 but not 0. Similarly infinity भी नहीं होगा, मतलब we can say like वैसे तो like speed of light that is the universal limit for speed, but यहाँ पर ठीक है generally speed of molecules उतना हाई स्पीड्स पे तो जाते नहीं है गैस के, ठीक है, इवन 1000 मीटर पर सेकेंड विल बी अ वेरी वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अब इसकी और डिटेल्स में जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट्स का एक बेसिक आइडिया लगा होगा दैट एग्जैक्टली व्हाट मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन टॉक अबाउट एज डिटेल्स रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ गैसेस, ठीक है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, इट कैन कंटिन्यूसली चेंज, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है, ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ गैस, दैट इज समथिंग व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लो स्पीड, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज ही हो गया एक तरीके से, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई स्पीड, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हो सकता है आफ्टर कोलिजन लो स्पीड का मॉलिक्यूल हाई स्पीड पे आ जाए, हाई स्पीड का मॉलिक्यूल लो स्पीड पे चला जाए। नाउ अब इसकी और डिटेल्स, ठीक है, ऑब्जर्व करना, इन विच विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विच पॉइंट्स आर यू नो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है, कि आप उनके बारे में ध्यान रखोगे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। नाउ आपसे ये इक्वेशन एक्सपेक्ट नहीं करी जाएगी कि आप ध्यान रखोगे, ठीक है, बट आपसे इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन जरूर एक्सपेक्ट किया जाएगा। सो dn is equal to 4 pi n m upon 2 pi rt raised to the power of 3 by 2 e की power minus mu square upon 2 pi rt, not pi actually 2 rt होगा, u square du, ठीक है। नाउ अब इसको देखकर डरने का नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर एज टू व्हाट दिस मीन्स, बट मैं आपको एक बार इस इक्वेशन का, ठीक है, मीनिंग, इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन जरूर बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, व्हाट डू ईच टर्म in this equation mean? dn represents, dn will be quite useful, ठीक है, represents number of molecules, ठीक है, in a given sample, it represents number of molecules having speed between u and u plus du, ठीक है, that is what dn represents, number of molecules having speed between u and u plus du, ठीक है। u is some general speed and du is the small interval of speed जिसके बीच में हम लोग देखना चाह रहे हैं कितना molecules present है, ठीक है। n represents total number of molecules in the sample that you have, ठीक है।
and then that is the reason dn by n, sometimes I take this n over here, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा. dn by n would represent fraction of molecules. ठीक है, dn क्या represent कर रहा था, number of molecules. dn by n represent करेगा fraction of molecules. ठीक है, इनफैक्ट चाहिए तो मैं इसको दूसरे इंक से हाईलाइट कर दूंगा, because these are some terms जो आगे काफी काम आएंगे. Fraction of molecules having speed between u and u plus du. ठीक है, du is a small interval of speed around u. ठीक है, मैं एक बार बताऊंगा आपको इसको मैथमेटिकली कैसे रीड करना है. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. अभी पहले एक बार let me spend some 5 minutes into talking about each and every term that is there in this expression. ठीक है, बाकी चीजें तो सिंपल है. m is the molecular weight, ठीक है, of the gas that we are going to talk about. r and t are also something that you know. ठीक है, r is gas constant, ठीक है, and t is temperature. ठीक है, now definitely this result is something जिसका derivation मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, but this is something which is what is called as the Maxwell-Boltzmann speed distribution. This equation, this is something which gives you the information about the speed of molecules of an ideal gas, ठीक है, in a certain condition, especially temperature. Now, अब इसको समझने की कोशिश करना. ठीक है, how this equation is worked out, how this equation is understood mathematically. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. Mathematical interpretation. So in order to understand its mathematical interpretation in a much better manner, I will pose a question. Okay, the question is in the following manner. Determine the number of molecules of O2. Okay, determine the number of molecules of O2 in its 1 mole sample at 300 Kelvin having speed between 100 and 101 meter per second. Okay. So let's say this is the question posed to you. आप लोगों ने अभी तक एक आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, डेंसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी, राइट, या ऐसी ही कुछ एक दो और प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी. ठीक है, what you have studied are called as observable or macroscopic properties. ठीक है, as a whole collection
we talk about these properties of a sample of ideal gas. Now, what we are going to do, or what we are actually doing with kinetic theory of gases, exploring certain detailed results about ideal gases, and one such detailed result is speed of molecules, speed of individual atoms or molecules of the gas. And without getting into the derivation of it, okay, because this is all the part of statistical thermodynamics, okay, this is based on this theory of probability and of course the KTG assumptions that we have. So we are not going into the derivation of it, but we are talking about its result, that this distribution presented by Maxwell and Boltzmann helps us to determine or answer questions like this. Okay, number of molecules of O2, okay, in 1 mole having speed between 100 and 101 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो ये आंसर कैसे आएगा यहाँ पर अब नोटिस करना. यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन distribution, ठीक है, we can come up with the answer that dn is equal to 4 pi n m upon 2 pi rt raised to the power of 3 by 2 e की power minus mu square upon 2 rt, ठीक है, u square du, and we will do an integration of this, ठीक है. जो स्पीड की लिमिट होगी वो क्या है, 100 से 101 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नाउ दिस इंटीग्रल, ठीक है, ये इंटीग्रल आपको करना नहीं आता है. e की पावर माइनस a x square dx is something which is too difficult at our level, ठीक है. इनफैक्ट आप 12th में भी जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, अभी तो खैर आप लोगों ने एक बेसिक सेंस पढ़ा है इंटीग्रेशन का इन फिजिक्स, ठीक है. स्टार्टिंग में आपने जो कैलकुलस पढ़ा है उसमें आपने बेसिक इंटीग्रेशंस पढ़े हैं, ठीक है. इवन 12th में जब आप इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लोगे, ठीक है, तब भी आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं सिखाया जाएगा. दिस इज सम काइंड ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है, गॉसियन इंटीग्रल्स बोलते हैं इनको, जिनका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है तो हायर साइंस मतलब हायर स्टडीज में, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या उसके आगे ही आगे जाके पढ़ाया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर this actual integration is not something which is anyways going to be asked from you, ठीक है. Now what you can actually do, ठीक है, instead of doing an integration, ठीक है, you can, ठीक है, do a multiplication, simple multiplication. If you remember, ठीक है, I can just you know, instead of doing over an integration, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि ऐसे y वर्सेस x ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इंटीग्रल इज अबाउट, ठीक है. अब यहाँ पर अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना आता है, ठीक है, आप सिंपली y को dx के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हो तो एटलीस्ट ये रेक्टेंगल का एरिया तो आ जाता है, ठीक है. मे बी ये इतना पार्ट का एरर रह जाएगा, ठीक है, बट यू माइट गेट अ क्लोज इनफ अप्रोक्सीमेशन इफ दैट dx is small enough, right. आप लोगों ने ये तो देखा होगा ना, जब फिजिक्स में आप लोगों ने कैलकुलस डिस्कस किया होगा, दैट इंटीग्रेशन is or something can be also understood as area under the curve, right. ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, अंडर द कर्व तो ये कर्व रहा और कर्व के अंडर तो ये पूरा रेड प्लस ब्लू का एरिया है, ठीक है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व.
ठीक है, दैट इज इंटीग्रल y dx। ठीक है, बट अगर मैं y टाइम्स dx भी कर दूंगा, ठीक है, आई जस्ट मल्टीप्लाई y बाय dx। ठीक है, फॉर द गिवन x आई हैव अ गिवन y। ठीक है, ये x है और ये x प्लस dx है। इसके लिए मैं x और y मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एटलीस्ट ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, विच विल बी lesser than the area under the curve by a small margin maybe। ठीक है, so as a quick approximation, ठीक है, you can actually think of doing this in this manner। ठीक है, not doing integration। ठीक है, dn is equal to 4 pi n m upon 2 pi rt raised to the power of 3 by 2 e की power minus mu square upon 2 rt u square multiplied by du। ठीक है, and then you substitute the values 4 pi into 6.02। ठीक है, एक एक करके आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट इन SI यूनिट्स, अदरवाइज यू माइट एंड अप गेटिंग एन इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। देन मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम पर मोल में नहीं चलेगा। ठीक है, SI यूनिट kg पर मोल होगा। ऑक्सीजन गैस का 32 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -3 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर का SI यूनिट का वैल्यू 8.314 होगा। टेम्परेचर 300 केल्विन है, रेज टू द पावर ऑफ 3 by 2, राइट, इंटू ई की पावर -32 इंटू 10 की पावर -3 इंटू यू इज 100 नाउ। ठीक है, 100 एंड 101 मीटर पर सेकेंड के बीच का बोला जा रहा है, तो यू को मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 8.314 इंटू 300 एंड डी यू कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 और 101 के बीच में। ठीक है, so this will give you the number of molecules। ठीक है, approximately। ठीक है, if you put in the values and do the calculation, so this will give you the number of molecules having speed between 100 and 101 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, of course ये भी आपसे कोई नहीं कराएगा। ठीक है, at least not the values वाला part, because you are not going to be able to solve for it, but हाँ मतलब they might ask you to compare between टू गिवन डेटा पॉइंट्स, और फिर उसमें आप जब डिवाइड करोगे तो काफी चीजें कैंसिल आउट होके कोई सिंप्लीफाइड रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, बट दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज, that it can help you to answer questions associated with speed of molecules। If you ask me, can Maxwell-Boltzmann distribution curve tell me the speed of molecules or number of molecules having speed exactly 100 meter per second? The answer is no, because the way in which this theory works, it is based on the idea of probability। ठीक है, इसमें what you can do is get the number of molecules having speed between 100 and 100.000001 meter per second, which you can say approximately as the number of molecules having speed 100 meter per second, because आपका interval इतना छोटा है that you have narrowed down your answer। ठीक है, so this is something which is the mathematical interpretation associated with the Maxwell-Boltzmann speed distribution। ठीक है, जितना मैंने बताया है, जितना मैंने समझाया है, उसमें now I would want to take your doubts one by one। ठीक है, and I'll unmute you, तो आप आराम से सोच के मुझसे आर्टिकुलेट करो, अपने डाउट्स पूछो, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे।
ऑल राइट, क्या क्या डाउट है? अच्छा, एक यश का डाउट है, कैन वी डू इंटीग्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? हाँ, मतलब इनफैक्ट ऑफ कोर्स, मतलब इसको आप इंटीग्रल करोगे तो यू विल गेट n विच इज मतलब मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट नहीं करा है इन द सेंस बिकॉज दिस n एंड दिस n इज डिफरेंट. ये वाला n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल, whereas this n would be the number of molecules, ठीक है, that would be having speed between u and u plus du जब इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, now any other doubt? Okay, आस्था का डाउट है, you have approximately written second but both aren't the. हाँ नहीं है ना, मतलब this, ठीक है, that is why I wanted to draw that diagram also. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना. ठीक है, this is the actual answer, this is the actual answer. ठीक है, if you know how to do the integration. ठीक है, this is you can say an approximated answer because मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना आ रहा था. ठीक है, क्यों? बिकॉज इफ यू रिमेंबर राइट दैट इंटीग्रेशन, ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हेन यू डू एन इंटीग्रेशन इट इज द एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा है, मैंने जस्ट यही सेम चीज ली है बट मैंने यहाँ पर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द एरिया अंडर द कर्व ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया. ठीक है, डिड नॉट गेट द डिटेल्स ऑफ इट. ठीक है, एंड इवन इफ, ठीक है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय दिस अप्रोक्सीमेटेड आंसर, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि मैथमेटिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, व्हाट आई जस्ट डिड एज एन अप्रोक्सीमेटेड आंसर, ठीक है, बिकॉज दिस इंटीग्रल इज टू डिफिकल्ट टू वर्क. ठीक है, आई जस्ट मल्टीप्लाइड द टू इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग. ठीक है, दिस इज एक्चुअल इंटीग्रेशन. ठीक है, एक्चुअल आंसर आई शुड से बाय integration, and this approximated answer is just by simply multiplication. ठीक है, by just multiplying this value with du. ठीक है, जो ये पूरा इक्वेशन था 4 pi n m upon 2 pi rt, ये वाला पूरा इक्वेशन I just multiplied this by du instead of doing an integration. ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं u स्क्वायर का टर्म लिखना भूल गया, माय बैड. 100 का स्क्वायर इंटू 1. हाँ ठीक है, e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 RT इंटू यू स्क्वायर. यू स्क्वायर हमने u 100 लिया था, इंटू 1. ठीक है, सो दिस du, ठीक है, दिस इज टेकन एज 1. ठीक है, u इज टेकन एज 100. ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग स्पीड बिटवीन 100 एंड 101 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये 100 एंड 101 मीटर पर सेकेंड के बीच में जो du है, ठीक है, दैट इज जस्ट 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दैट इज व्हाट du is in the context of the question that we have taken. ठीक है, had I asked you or modified this question asking you determine the
number of molecules of O2 in its 1 mole sample at 300 Kelvin having speed between 100 and 100.1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अगर मैंने ये पूछा होता तो ऑल यू वुड नीड टू डू, ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता टू गेट द करेक्ट आंसर. 100 से कहाँ तक लिमिट रहती है आपकी? 100.1 तक, तो आपका ये करेक्ट आंसर आता. बट यहाँ पर अभी मुझे अप्रॉक्सीमेशन करना है, तो मैं जस्ट ये du को 0.1 बोल दूंगा. ठीक है, u विल बी 100 एंड du विल बी 0.1. ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू विल मैथमेटिकली गेट द आंसर टू इट. ठीक है, नाउ अब डेफिनेटली ये आपसे नहीं करवाया जाएगा. ठीक है, फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आई वांटेड टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्चुअल यूज ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बट आपसे ये नहीं करवाया जाएगा. ठीक है, व्हाई? बिकॉज व्हेन यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, व्हेन यू हैव अ लार्ज सैंपल, राइट, then what makes more sense are statistical averages. ठीक है, for example, let's say all of you, ठीक है, are part of one group. ठीक है, and सबकी अलग अलग height है. Now if I was to talk about the height of this class, then I would not talk about each and every data point in detail, because it will be not something which will be quite a meaningful exercise. What I would rather talk about are statistical averages, ठीक है, or statistical measures. For example, I will talk about what is the average height of this class. ठीक है, mean बोलते हैं हम उसको, mean height कितना है class का. ठीक है, or I can talk about certain selective data points in that distribution, that what percentage or what fraction of students have height less than 5 feet or more than 6 feet. ठीक है, so that will be something of a meaningful discussion or a meaningful result out of a large sample set. ठीक है, तो उसी तरीके से, ठीक है, आप नोटिस करोगे उसी तरीके से जब ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करा जाता है, ठीक है, then the results of statistically important terms, ठीक है, like mean, mode, median is what is important. ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करना that of this distribution, ठीक है, of this Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speed, what are the important statistical measures, what are the important statistical terms that come out. ठीक है, तो एक एक करके रिजल्ट्स ही ऑब्जर्व करना है. अगेन डेरिवेशन में नहीं जाना है आपको. ठीक है, मैं जस्ट आपको ये रिजल्ट्स बताता हुआ जाऊंगा. एक एक करके रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना. सो विल टॉक अबाउट द फर्स्ट रिजल्ट, दैट इज एवरेज. ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना. Let me put the heading statistically important results of speed of molecules सबसे पहला will be mean और average speed. ठीक है, this is represented by the symbol u सबस्क्रिप्ट में average. ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना.
डेफिनेशन क्या होता है एवरेज का? सब मॉलिक्यूल्स का स्पीड एड अप कर दो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड यू विल गेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना u average is written as u1 dn1 u2 dn2 u3 dn3 and so on so forth divided by n। ठीक है, हाउ डू वी रीड दिस? यहाँ पे नोटिस करना what it means is what does dn1 represent? dn1 represents molecules having speed u1, dn2 represents molecules having speed u2 and so on so forth। ठीक है, तो मुझे अगर एवरेज के बारे में बात करना होगा तो हाउ वुड दैट साउंड लाइक? आई विल जस्ट सम अप द speeds of all the molecules and divide by the total number of molecules। Mathematically what it means is that you have to do an integral, ठीक है, of u dn। Speeds can be ranging from 0 to infinity and divided by n। एंड जिनको ये इंटीग्रेशन करना आता है उन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया है। ठीक है, आपको उस इंटीग्रेशन में अब घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये dn अब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग dn फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड डूइंग द इंटीग्रेशन with the limit 0 to infinity, you will get the answer as root 8 RT by pi m। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन भी ठीक है, दिस इंटरप्रिटेशन इज आल्सो समथिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर, बट मोर इंपॉर्टेंट इज दिस रिजल्ट। ठीक है, दैट दिस इज द u average, this is the average molecular speed of a sample of a gas, ठीक है, having molecular weight m and under the temperature T। ठीक है, this is something that comes from putting this distribution, ये जो expression है इसको यहाँ पर put करके integrate करने पर आता है। ठीक है, you all you need to remember is the result। So this is the first important result from this Maxwell Boltzmann speed distribution। ठीक है, now दूसरा result notice करना। ठीक है, दूसरा result रहता है which is called as square root of average of squares ठीक है, इनफैक्ट लेट मी इनफैक्ट पुट अ नेम फर्स्ट एंड देन बाद में मैं डिफाइन करता हूँ। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और इट इज रिटन एज यू आर एम एस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल एवरेज है। इसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पर नोटिस करना। ठीक है, यू आर एम एस इज द स्क्वायर रूट of
ठीक है, ये इनफैक्ट आपने डेरिवेशन के टाइम पे भी देखा होगा, शायद मैंने बताया होगा इस चीज के बारे में, दैट यू आर एम एस इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड। ठीक है, इनफैक्ट जैसे यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, यू एवरेज को इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यू के ऊपर एक बार, इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, यू स्क्वायर के ऊपर बार का स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन वुड बी। ठीक है, जो स्क्वायर्स हैं उनका एवरेज लिया और उसका स्क्वायर रूट इज व्हाट इज यू आर एम एस। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे नोट करना। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मीन स्क्वायर स्पीड ऑल्सो। ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड इज जस्ट यू स्क्वायर्स का एवरेज। ठीक है, और यू कैन से यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब उसका अंडर रूट ले लेना। ठीक है, यू आर एम एस स्क्वायर का अंडर रूट लेना, मतलब दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज यू आर एम एस। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। नहीं नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू मॉड यू। ठीक है, दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या थोड़े कम ही ले लो, चलो 5 तक ही ले लो। आपके पास ये डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, अब मैं इनका मीन आपसे पूछूंगा, तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यू विल कंप्यूट, सो ये आपका 15 अपॉन, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मीन। ठीक है, अब आप नोटिस करना, यही डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, इनका मैं रूट मीन स्क्वायर निकालूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, निकाल के देखो क्या ये वैल्यू 3 के बराबर आती है। ऑफ कोर्स नहीं आएगी। ठीक है, यू कंप्यूट दिस, कितना हो जाएगा ये, निकाला किसी ने, राइट, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये, 3 पॉइंट, हाँ मतलब √11। सो √11 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 हो जाएगा क्या, आई थिंक 3.3 समथिंग हो जाएगा मे बी। ठीक है, बट ऑफ कोर्स दीज आर नॉट द सेम वैल्यूज। सो दैट इज व्हाट, समझ में आया यश, that these are two different statistical measures. ठीक है, नाउ इसका रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, यू आर एम एस किस तरीके से निकाला जाएगा, सो u1 स्क्वायर dn1, u2 स्क्वायर dn2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, डिवाइडेड बाय n का होल रूट। ठीक है,
where the same things are there, that dn1 represents the number of molecules having speed u1, dn2 represents the number of molecules having speed u2, and so on so forth. ठीक है, u3 क्यों लिख दिया यहाँ पे, u2 होगा. ठीक है, तो उनके स्क्वायर्स, स्पीड के स्क्वायर्स का मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाय करा, उनका स्क्वायर रूट ले लिया. तो अब इसको जब निकाला जाता है, ठीक है, तो यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन u स्क्वायर dn, इसको इंटीग्रेट करा जाता है 0 से इन्फिनिटी. एंड व्हेन दिस इज कैलकुलेटेड, ठीक है, एक तो हमने केटीजी के थ्रू डेरिवेशन देख लिया था, ये एक और डेरिवेशन रहता है इसका. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी √3 बाय, और सॉरी √3 RT बाय m. ठीक है, ये आपका रिजल्ट रहेगा URMS का. ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन एज वेल. ठीक है, बट जो ज़्यादा याद करने के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, वो मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया है. दिस इज द मीन स्क्वायर स्पीड और URMS, √3 RT बाय m. ठीक है, देन एक और थर्ड, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकाला जाता है. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रिटन एज UMPS. ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपने मीन मोड मीडियन में जो मोड पढ़ा था, ठीक है, वो यही है. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग which is calculated by determining the maxima of the speed distribution diagram. ठीक है, इसका भी रिजल्ट हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, वो आप नोटिस करना. लाइक व्हाट वी डू इज, व्हाट यू कैन से इज दैट ये जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, dn/du, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, ठीक है, वी प्लॉट दिस वर्सेस u. ठीक है, या फिर चलो इसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूँ. मैं अभी तो रिजल्ट ही निकालता हूँ एंड फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूँ, इसका डेरिवेशन जो है. ठीक है, डेरिवेशन टू बी डिस्कस्ड विद ग्राफ्स. ठीक है, तभी मैं आपको इनफैक्ट इसको बेटर समझा पाऊंगा. इनफैक्ट तब मैं आपसे डिराइव ही करवाऊंगा. यहाँ पे मैं सीधे रिजल्ट लिखा देता हूँ. UMPS comes out to be √2 RT by m. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे नोटिस करना, व्हाट डज इट मीन. ठीक है, दिस स्पीड is possessed by maximum number of molecules in a given sample. ठीक है, so you have say a distribution. ठीक है, लो स्पीड हाई स्पीड. ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड 99 मीटर पर सेकेंड होगी, किसी की 100 होगी, कितनी मॉलिक्यूल्स की 101 मीटर पर सेकेंड होगी.
तो ऐसी कौन सी स्पीड है विच इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और यूएमपीएस। ठीक है, जो आप मीन मोड मीडियन पढ़ते थे उसमें जो मोड होता था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइट ऑफ द क्लास का एग्जांपल दिया, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ हाइट ऑफ 5 फीट से 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 8 इंच, ठीक है, डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाट दिस थर्ड स्टैटिस्टिकल टर्म विल बी। ठीक है, हम लोग इसमें मीडियन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग मीन पढ़ते हैं, हम लोग मोड पढ़ते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ मीडियन, ठीक है, वी हैव अनदर स्टैटिस्टिकल टर्म विच इज यूआरएमएस। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेंगे हमारे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, जो हमें याद रखने रहेंगे फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ यहां पर ऑब्जर्व करना, ध्यान से समझना इनकी कैलकुलेशंस में, ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, एंड this will actually require the help of a calculator because square root and all निकालना रहेगा, so don't bother about the calculation part. You can फटाफट से use a calculator and try to give an answer to the questions. ठीक है, so let's say if I ask you this question in which I'm asking you that determine the, ठीक है, you have this question, determine URMS, ठीक है, in meter per second of O2 at 300 Kelvin। ठीक है, तो आप इसका आंसर दो क्विकली। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ, URMS इज इक्वल टू √3 RT/m। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट यूनिट्स आर अप्रोप्रिएट, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नहीं हर्ष, आपका आंसर गलत है। हाँ राइट यश, इसमें आर को भी ऐसा यूनिट में ही लेना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू टेक आर इन ऐसा यूनिट्स। नहीं नहीं, आप देखो क्या गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से ऑब्जर्व करना। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, एंड M is 32 into 10 raised to the power of -3। ठीक है, यहाँ पर SI यूनिट्स में मॉलिक्यूलर वेट ये kg पर मोल में लगेगा। ठीक है, एंड इसके ऊपर बेस्ड अब आप कैलकुलेशन करोगे तो यू शुड गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, 480 समथिंग मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 483 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा। ठीक है, इसमें सिंपल फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट यूनिट्स में स्टूडेंट्स गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज द रिजल्ट्स आर प्रीटी सिंपल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ठीक है, डोंट यूज आर इन द कॉमन यूनिट्स, ठीक है, देन इट माइट गिव यू स्पीड इन सम अदर यूनिट्स विच यू डू नॉट नो, not in meter per second. So यहाँ पर strictly speaking I will advise you to work only and only with SI units. तभी आप मीटर पर सेकंड में लेके आ पाओगे. हाँ राइट पृथ्वीराज, आर को 25/3 भी ले लो तो चल जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा एक्यूरेटली करोगे तो बेटर. अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैल्सी यूज कर लो, आई डोंट माइंड. नहीं नहीं प्रथमेश, एसआई यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन जरूरी है, ठीक है. इसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको और हेल्प कर देता हूँ, ठीक है. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी, राइट. सो यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगा ना, दैट आर टी बाय एम कैन बी रिटन एज पी बाय डी. ठीक है, अब इसको ऐसा यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट करना. 3 into 1 ATM will be 1.01325 into 10 raised to the power of 5 Newton per meter square. And density ये ग्राम पर सीसी में है, तो ये 0. ग्राम के लिए 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर -6 नीचे आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा. तो ये 1 2 3 जीरोस गए, 0.09 kg पर मीटर क्यूब रहेगा, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा. और अब आप सॉल्व करो तो आपका करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, ये कुछ ऐसा 1800 के आसपास आएगा, 1830 मीटर पर सेकेंड रफली, बट दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर शुड बी. हाँ तुम कुछ जीरो की गड़बड़ कर गए हो प्रथमेश, देखो. हाँ नहीं, इसमें यही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट क्वेश्चन आता है पूरा अच्छा खासा, बट यूनिट्स में स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, बस और कुछ नहीं है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आल्सो रिमेंबर, you know what is meant by the definition of average and root mean square speed. ठीक है, sometimes those questions are also pretty basic. ठीक है, for example if you have a question something like this in front of you, ठीक है, something of this nature, say this is the question. ठीक है, इसमें बेसिक डेफिनेशंस याद करने की जरूरत है. what was meant by RMS, what was meant by average, right. तो u average क्या हो जाएगा इसमें, 2 plus 2.2 plus 2.6 plus 2.7 plus 3.3 plus 3.5 अपॉन कितने डेटा पॉइंट्स हो गए, ये 6 डेटा पॉइंट्स, तो ये आपका यू एवरेज हो जाएगा. ठीक है, यू आर एम एस क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 2.6 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर, राइट. इस तरीके से अपॉन 6 का स्क्वायर रूट इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऑल राइट. चलो अब इस क्वेश्चन का इनफ प्रैक्टिस करने के बाद में, नाउ यू शुड बी एबल टू गिव मी द
like exact correct answer. ठीक है, and you should be correct in the first attempt itself. चलो आंसर बताओ. अभी इतने समझदार हो जाने चाहिए कि यूनिट्स के साथ में वर्क करना आना चाहिए. नहीं प्रथमेश, आपने टेम्परेचर का सही दिया है बट स्पीड का सही नहीं दे रहे हो. आप एक मिनट, एक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो प्रथमेश. जो स्पीड ऑफ साउंड रहती है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उसी के अराउंड रहती है. 300 400 या उसके आसपास, मतलब आप ऐसे 1000 मीटर पर सेकेंड तक भी जा सकते हो, 1000 2000 मीटर पर सेकेंड तक भी जा सकते हो. बट लाइक स्पीड ऑफ साउंड विच यू नो एज अ वैल्यू, राइट, जनरली 300 400 मीटर पर सेकेंड के बीच में रहती है. तो आपके आंसर ऐसे 1 2 मीटर पर सेकेंड के नहीं हो सकते. ठीक है, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो. ठीक है, जहां जहां सिंगल डिजिट आंसर आ रहे हैं आप लोग अभी भी यूनिट्स का खेल नहीं समझ पा रहे हो. ये पिछला वाला सम तो सिंपल था ना. सारे सम देख लो तुम. यूनिट्स के साथ में ध्यान रखो. ऑलराइट, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? अगेन you will have to ensure the units are correct. So इसमें नोटिस करना,
U RMS will be equal to root 3 RT by M, ठीक है। टेम्परेचर आएगा PV बाय NR से, राइट। एंड अब ऑफ कोर्स it depends on you how you want to calculate the temperature। जैसे प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। मोल्स 1.03 अपॉन 6.03 हो जाएगा, या 6.02 बोल लो, ठीक है। एंड आर का वैल्यू 0.0821 में यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सब एटीएम लीटर्स में करा है, तो इससे मेरा टेम्परेचर का वैल्यू, ठीक है, कुछ 72 केल्विन के आसपास आ जाता है, ठीक है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 72 केल्विन या 71 केल्विन, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यू देन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, √3 इंटू, अब यहाँ पे आर का करेक्ट एसआई यूनिट का वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे यू कांट टेक आर का वैल्यू 0.0821, ठीक है। तो यहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैच। अच्छा सॉरी, आरएमएस नहीं पूछा, माय बैड, यू एवरेज पूछा है, तो ये 8 RT बाय पाई एम कर लो। So now when you calculate this value, ये कितना आता है? ये 900 कुछ आएगा, 942 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। पूर्णा ने सही आंसर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको अब समझ में आ रहा है। सिंपल पार्ट है, मतलब दिस इज समथिंग इन विच स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला का एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, इन दीज क्वेश्चंस। बट अभी आप मान के चलो कि ये मैंने आपको काइंड ऑफ मेंस लेवल तक का अंडरस्टैंडिंग बता दिया है, ठीक है। अब एडवांस लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो ग्राफ्स के पर्सपेक्टिव से रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो हमने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा ना इसका, ठीक है, आज हमने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा इस इक्वेशन का, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों को करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो क्रूशल रहेगा एडवांस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इनफैक्ट इस साल का एडवांस का क्वेश्चन एक आया था इसी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे ही आया, ठीक है, फ्रॉम द गैसियस स्टेट चैप्टर। आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या था, कैसा था, ठीक है। बट पहले एक बार ये बेसिक फॉर्मूलाज जरूर याद रखना है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड होमवर्क इसके साथ में थोड़ा बहुत रहेगा, मैं देता हूँ आपको। डीपीपीज वगैरह मैंने पहले भेजी थी ना, आई थिंक काफ़ी सारी डीपीपीज वगैरह भी भेजी हुई हैं पहले। आई होप आपने वो लोग वो भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है। एंड हाँ, जो एडवांस वाला पार्ट था उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको भेज दिए, तो वो आप एक बार देख लेना। उसमें से कुछ क्वेश्चंस में अगर आप अटक रहे होगे तो दो सॉल्यूशंस माइट हेल्प यू टू गेट द आंसर्स, ठीक है। ऑल राइट, चलो, टेक केयर गाइस। कुछ डाउट पूछना है किसी को? ऑल राइट, चलो।
Then take care. Bye bye.